जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ टू डायमीटर्स ऑफ द सर्किल इज आर 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 4y इक्वल टू 7। तो यहाँ से मेरे को क्या पता चला कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर गिव्स सेंटर ऑफ द सर्किल। चलिए तो पहले अपन इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो वी हैव 2x minus 3y equal to 5 and another line we have that is 3x minus 4y equal to 7. Multiply with 3 and multiply with 2. So we will get 6x minus 9y equal to 15 and 6x minus 8y is equal to 14. Subtract both minus, plus and minus. So we are getting minus of y equal to 1, which means y is equal to minus 1. If y is minus 1, x also will get 1. Substitute in the any one of these. So 2x plus 3 is equal to 5, यानी कि 2x equal to 2. So x is equal to 1. So our center is what? Center we have that is 1 comma minus 1. Now the next step is what? The line joining the points minus of 22 by 7 comma minus of 4 and minus 1 by 7 comma 3 intersect the circle at only one point, that is alpha comma beta. Okay, so first step we will find the line joining by these 2 points. Okay, so equation of line. Joining minus of 22 by 7 comma minus of 4 and minus of 1 by 7 comma 3. So we know that key format is what? Y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 multiply with x minus x1. So y minus 3 is equal to 3 plus 4 upon minus of 1 by 7 plus 21 by 7 and x plus 1 by 7. इसको थोड़ा सा अपन रीअरेंज कर लेते हैं तो आ जाएगा क्या? y minus 3 is equal to 7 अपॉन, देखो यहाँ पे सॉरी 22 है तो 21 बच गया, 21 डिवाइड विथ 7 3 एंड x प्लस 1 बाई 7 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स 3y minus 9 is equal to 7x plus 1. So we are getting 7x minus 3y plus 10 is equal to 0. ओके, सो सिचुएशन क्या है हमारे पास कि एक सर्किल है हमारे पास. ओके, सॉरी. Okay, one circle we have whose center is 1 comma minus 1 and one tangent we have at point P alpha comma beta whose equation is 7x minus 3y plus 10 is equal to 0. Okay, so this perpendicular distance from center to this line gives radius, right? चलिए तो perpendicular distance का formula अपने को पता होना चाहिए. So we have situation likewise, that is 1 comma minus 1 we have to draw perpendicular to the line 7x minus 3y plus 10 equal to 0. ये आपकी रेडियस हो जाएगी. तो डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास है इसका, that is r equal to, okay, we have to satisfy this point in this equation. So we'll get 7 plus 3 plus 10 upon root over coefficients यानी कि 49 plus 9. Okay, which means r is equal to 10 plus 10 20 by root over 58. So radius we have 20 by root over 58. Okay, so equation of circle easily we can write. Equation of circle x minus 1 whole square y plus 1 whole square is equal to 400 upon 58. ओके, देखो अब यहाँ पे मेरे को फाइंड क्या करना है, अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है ना. तो एक तो अल्फा कॉमा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. दूसरा क्या होगा कि इस
इस सर्किल पे यदि मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिखता हूँ पॉइंट फॉर्म में, तो वो क्या आएगी? तो पहले थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेता हूँ। रीअरेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 400 अपॉन 58 इक्वल टू 0. So x square plus y square minus 2x plus 2y, and we have plus of 2 minus 400 upon 58 equal to 0. तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y, and plus we have here a to the 16 and 116 minus 400 upon 58. ओके, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, and then we will get 9 minus 1 8, and 3 minus 1 2, 284 upon 58 of minus, and x square plus y square minus 2x plus 2y इक्वल टू 0. अब इसको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है पॉइंट फॉर्म में, तो वो देखो किस तरह से आती है कि इक्वेशन मेरे को लिखनी है एट अल्फा कॉमा बीटा पे. ओके, तो आपको रिप्लेस करना होता है एक्स स्क्वायर किससे, एक्स x1 से, और वाई स्क्वायर हमको रिप्लेस करना होता है वाई y1 से. एक्स वी विल रिप्लेस विथ एक्स प्लस x1/2 से, एंड y वी विल रिप्लेस विथ y1, सॉरी y प्लस y1/2 से. तो ये रिप्लेसमेंट मैं करूंगा तो यहाँ पे x1 और y1 क्या है, अल्फा और बीटा है. तो क्या आ जाएगा, x अल्फा प्लस y बीटा माइनस 2 टाइम्स x प्लस अल्फा/2 प्लस 2 टाइम्स y प्लस बीटा/2, एंड माइनस इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 142 अपॉन 29 इक्वल टू 0. ओके, अब इसको थोड़ा सा आप फर्दर रीअरेंज करो, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y में. तो देखो यहाँ पे x अल्फा प्लस y बीटा माइनस x माइनस अल्फा प्लस y प्लस बीटा माइनस 142 अपॉन 29 इक्वल टू 0. तो मेरे पास इक्वेशन आएगी, देखो क्या है, x कंपेयर करते हैं तो अल्फा माइनस 1, एंड बीटा को कलेक्ट करेंगे, सॉरी y को कलेक्ट करेंगे तो आएगा बीटा प्लस 1, एंड रिमेनिंग अवर कांस्टेंट. सो वी हैव बीटा माइनस अल्फा माइनस 142 अपॉन 29 इक्वल टू 0. अब ये देखो, ये जो इक्वेशन आई थी एक टेंजेंट की, है ना, 7x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन बोथ आर व्हाट, सिमिलर. तो वी विल कंपेयर द कोफिशिएंट. तो इफ वी विल कंपेयर कोफिशिएंट, so we will get what, alpha minus 1/7, है ना, because here coefficient of x is what, 7, equal to beta plus 1 by minus of 3 equal to, here we have beta minus alpha minus 142 upon 29 upon, here we have constant that is 10 equal. Okay, चलिए, if we will solve these two, so what we are getting, minus of 3 alpha plus 3 is equal to 7 beta plus 7, यानी कि 7 बीटा प्लस 3 अल्फा. ओके, एंड प्लस 4 इक्वल टू 0. ओके, सिमिलरली आप फर्स्ट एंड लास्ट को सॉल्व कर लो, या फिर सेकेंड एंड लास्ट को सॉल्व कर लेते हैं. तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 10 बीटा प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 बीटा प्लस 3 अल्फा and plus 3 multiply with 142 upon 29. Okay, चलिए, तो आ गया क्या, 13 बीटा माइनस 3 अल्फा, ओके, प्लस 10 माइनस, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 4 3 जा 12, एंड 426 अपॉन 29 आ रहा है. ठीक है, और इक्वल टू 0. देखो यहाँ पे भी 3 अल्फा है, सो 3 अल्फा यहाँ से क्या आ रहा है मेरे पास, -4 माइनस 7 बीटा, वो यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि देखो -3 अल्फा इज इक्वल टू 4 प्लस 7 बीटा. तो वो रिप्लेस करूंगा तो क्या आएगा, 13 बीटा प्लस 4 प्लस 7 बीटा प्लस 290 माइनस 426 अपॉन 29. ओके,
यानी कि 20 बीटा प्लस 4 प्लस, अब देखो यहाँ पे करते हैं तो 290 माइनस 426 अपॉन 29, ये इक्वल टू मेरे पास है 0। ओके, इसको यदि मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो 20 बीटा प्लस 4 मल्टीप्लाई विथ 29, 116 प्लस 290 माइनस 426 अपॉन 29 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से मेरे पास बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1/29। If we will solve alpha, तो alpha will get minus of 41/29. So we have to find 17 beta minus alpha, यानी कि 17 upon 29 plus 41 upon 29. ओके, तो 58 upon 29 which is equal to 2। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा।